अच्छा जी, तो यानी यही हमारे पास जो है ना इसका फर्दर जो है ना वी कैन से हाइपोथेसिस जो है ना आपके पास नेसेसरी होते हैं whenever you are claiming any statements or any what we can say assertion for about any problem. For example, if you say okay, for any kind of disease, let's say there is a problem or there is a disease, for example, you want to predict or you want to test a medicine, like let's say whether this medicine will work or not. So you would apply hypothesis testing. Now what is hypothesis testing? Hypothesis testing is a statistical method. So if you talk about this statistical hypothesis testing, it is nothing but it's a kind of hypothesis testing or a statistical method used to make inferences about a population based on sample data. Okay, you would be having a data and you would be making the inferences. You would be making some decisions about any data, for example, about any population, about any sample. For example, given there are the people, let's say we talk about Sakkar people or the people from Sakkar or from Khairpur or from Shikarpur, let's say if you got a kind of disease in those all the people, you would be just making some inferences. You won't be making, for example, direct decisions on any problems. But before making any decision on any population, you would be making some assertions. You would be making some hypotheses. You would be making some decisions, and those decisions must be based on some scientific methods. Now, hypothesis comes over there whenever there is a kind of what we can say decision making in any kind of what we can say is medical field or biostatistics. So it's a kind of a statistical method that is used to make inferences. You know about the inferences. Inferences are simply the decision conclusions or insights, future insights. We call about the inferences. We say these are the future insights about any population. For example, if I say, okay, if the people of Sakkar would be eating that much dates, that much what we can say, for example, the potatoes or that much a kind of, let's say, fatty products or etc. whatsoever, or lipid products, they would be acquired or they would be acquainted with a lot of problems during their journey of life. So how to save them from these all the difficult problems, and what are the diseases that can come across over there? We would be using hypothesis. Okay, what does hypothesis helps? It helps determine if an observed effect is statistically significant or due to chance. फॉर एग्जाम्पल देयर इज काइंड ऑफ एनी इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट आपको नजर आता है कि जी लेट से कहीं पे कोई बीमारी हुई है, कोई परेशानी हुई है। अब आपने ये देखना है, आप आया कि जो हम डिसीजन जो ले रहे हैं किसी इफेक्ट के बारे में या किसी भी कोई भी प्रॉब्लम आपकी नजरों के सामने आई है, अब आप ये देखना चाहते हैं क्या ये स्टेटिस्टिकली कोई अहमियत का हामिल है या नहीं है, या फिर कोई डिसीजन जो आपने लिया है वो स्टेटिस्टिकली सही है या फिर चांस के जरिए। फॉर एग्जांपल कभी कभी आप किसी भी डिजीज का लेट से कोई आपने इलाज कर दिया जी, कोई बंदा जो है ना वो ठीक हो गया, आपने कोई उसको जो है ना मेडिसिन दी और बंदा ठीक हो गया। अब लाजमी जैसे आपने सुना भी होगा कि हमारे यहाँ अक्सर गाँव में या फिर कहीं पे भी किसी जो देहाती लोग होते हैं फिर पढ़ जो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो कहते हैं कि जी मैंने जो है ना फॉर एग्जाम्पल जो है ना फलानी मेडिसिन ली थी उसी से मेरा इलाज सही हुआ है, हालांकि वो मेडिसिन उस चीज के लिए नहीं होती या फिर वो मेथड उसके लिए नहीं होता, लेकिन फिर भी वो जो है ना उनका इलाज हो जाता है। उसकी वजह क्या, आप यू आर सपोज टू थिंक अबाउट दैट यूजिंग हाइपोथेसिस। आपको ये पता चलता है कि आया कि जो आपने इलाज किया है जिस बीमारी का या जिस प्रॉब्लम का, वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट थी या फिर किसी चांस के जरिए हुआ था, क्योंकि कभी कभी कोई इलाज चांस के जरिए भी हो जाता है। कोई कभी कभी आपके सर में दर्द होता है, आप कहते हैं कि जी चाय पी लीजिए सर का दर्द सही हो गया। अब लाजमी तो नहीं है कि चाय का दर्द जो है ना, चाय पीना जो है ना सर के दर्द का इलाज तो नहीं है, लेकिन यस दैट इज ड्यू टू चांस। तो कुछ डिसीजन जो होते हैं वो ड्यू टू चांस होते हैं और कुछ डिसीजन जो होते हैं वो स्टैटिस्टिकल होते हैं। तो जो चीजें स्टैटिस्टिकल होती हैं, हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जरिए हमें पता चलता है कि आया कि वो चीजें स्टैटिस्टिकली है या फिर ड्यू टू चांस है। अच्छा, these are hypothesis testing is used commonly used in scientific research। ये मोस्टली साइंटिफिक रिसर्च में यूज होती है, बिजनेस में यूज होती है, मेडिसिन में यूज होती है एंड इंजीनियरिंग में। मोस्टली ऑल ऑफ दीज फील्ड्स आर यूजिंग हाइपोथेसिस टेस्ट। आप साइंटिफिक रिसर्च में कैसे जी आपने कोई जो है ना इंस्ट्रूमेंट बनाना है और आप उस पर काम कर रहे हैं, तो यू गाइस आर सपोज टू थिंक अबाउट दैट कि भाई जी लेट्स से हम अगर ये लेट्स से हम डिसीजन लेते हैं या फिर कोई भी जो है ना आप जो है ना, अच्छा एक, हाँ तो आप क्या करते हैं कि जी साइंटिफिक रिसर्च में आपने कोई मशीन बना दिया, फिर आपने कोई इंस्ट्रूमेंट बना दिया, तो वो साइंटिफिक रिसर्च में भी आपको यूज हो सकता है। या फिर आपने जो है ना किसी डिजीज पे रिसर्च कर रहे हैं आप कि आया कि
कोरोना वायरस की बात अगर एग्जांपल ले लें कि जी कोरोना वायरस जो है ना कितना हद तक फैल चुका है और शक्कर के लोगों में कितना तेजी से फैलता है या स्लो फैलता है, या फिर ऐसे लोग जो कि जो है ना जो कोई गिजा अगर स्पेशल गिजा जिनका अगर इम्यून सिस्टम स्पेशल टाइप का है तो किस तरह से डिजीज जो है ना उन पे जो है ना काबिज होता है। और बिजनेस में तो आपके पास यूज होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, और इसी तरह से मेडिसिन में यूज होता है और प्लस में इंजीनियरिंग में भी यूज होता है। अगर हम इसकी एग्जांपल लें हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी कोई टेस्ट करती है इफ अ न्यू ड्रग लोअर्स ब्लड प्रेशर और नॉट। फॉर एग्जांपल कोई मेडिसिन कंपनी है जो यूज कर रही है, फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो टेस्ट कर रही है किस पे, कि वो उन्होंने कोई नई दवा बनाई है, अगर वो क्या वो दवा जो है ना ब्लड प्रेशर के लिए को लोअर करती है या नहीं करती। या तो वो दवा जो है वो ब्लड प्रेशर को लोअर करेगी, या दवा जो है ना ब्लड प्रेशर को लोअर नहीं करेगी, कम नहीं करेगी। तो इस तरह की टेस्टिंग हम क्या करते हैं, इसमें आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है ना करा रहे होते हैं। यहाँ पे आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग आती है, आप जो बायोस्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं। अच्छा जी, फिर अगर हम बात करें, अच्छा व्हाई इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग इंपॉर्टेंट, हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट क्यों है। अच्छा यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है। No, sir. सही चल रहा है, अगर कोई इशू है तो मुझे बताएं। ओके ओके जी। सो आके अगर हम बात करें अब कि क्यों आपके पास जो है ना इंपॉर्टेंट होती है, yes, why is hypothesis testing important, it provides a structured way to validate claims using statistical evidence। अब ये क्या करेगी, आपको ये स्ट्रक्चर्ड वे देगी किसी भी क्लेम जो आप क्लेम करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो हाइपोथेसिस होते हैं वो एक किस्म के क्लेम्स होते हैं। आप क्लेम करते हैं कि जी ये इलाज जो है ना ये बेहतर है फलानी बीमारी के लिए। अच्छा अगर ये इलाज बेहतर है तो ये कौन अच्छा आपने ये क्लेम कर दिया। अब जैसे ही आपने ये क्लेम कर दिया लाजमी तो नहीं है कि वो आपका क्लेम सही होगा, तो आप क्या करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या करती है, आपको एक किस्म का स्टैटिस्टिकल एविडेंस देती है जो कि स्ट्रक्चर्ड होता है, वो वेरीफाई कराता है कि ये आया कि ये सही है या गलत है। अच्छा, इट हेल्प्स मेक डेटा ड्रिवन डिसीजंस। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जरिए आप क्या करते हैं, डेटा ड्रिवन डिसीजन लेते हैं। कैसे, आपका कभी कभी गट फीलिंग्स आ जाती हैं। गट फीलिंग्स क्या होती हैं, जो डेटा के ऊपर बेस्ड नहीं होती, यानी आप अपनी तरफ से आपने सोचा कि जी हाँ बस मैं ठीक हूँ, या फिर आपने कहा कि जी फलानी मेडिसिन काम करेगी। देखिए आप ऐसे तो नहीं कह सकते कि जी आपको अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसको जी म्यूटेशन हो रही है, डीएनए में म्यूटेशन है, या फिर वो कैंसर उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, हम ये तो नहीं कह सकते कि जी उस बंदे को जो है ना कैंसर है तो हम क्या करें जी, हम उसको जो है ना लेट से जी हम आलू खिला दें या फिर हम उसको जो है ना खजूर खिला दें तो उसका कैंसर खत्म हो जाएगा। या फिर ऐसा कि जी फलाने बंदे को कैंसर था, मैंने उसको खजूर खिलाई और उसका कैंसर सही हो गया। ऐसा तो नहीं होता। ये होती है आपके पास गट फीलिंग्स, गट डिसीजन जिसको हम कहते हैं, गट फीलिंग डिसीजन जो होते हैं आपके पास। लेकिन दूसरे होते हैं आपके पास डेटा ड्रिवन डिसीजन। डेटा ड्रिवन डिसीजन क्या होते हैं, जो आप डेटा पे, आपके पास डेटा होता है पुराना, उस डेटा की बेसिस पे आप जो है ना डिसीजन ले रहे होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डेटा ड्रिवन डिसीजन। हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपके पास इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डेटा ड्रिवन डिसीजन आपको लेके देता है। अच्छा ये क्या करता है आपके पास, हाइपोथेसिस टेस्टिंग मिनिमाइजेस एरर्स इन डिसीजन मेकिंग। ज़ाहिर है जब आप आपके पास डिसीजन मेकिंग जो है ना डेटा के ज़रिए होगी, हाइपोथेसिस के ज़रिए होगी, तो आपके जो एरर्स होंगे वो होने के चांसेस कम होंगे। आप कम एरर करेंगे, कम गलतियाँ आप करेंगे। इसकी एग्जांपल कौन-कौन सी है आपके पास? अ कंपनी टेस्ट्स इफ अ न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी इंक्रीजेस सेल्स। लेट्स से कोई कंपनी है, वो टेस्ट करती है, उन्होंने मार्केटिंग का जो अपना तरीका है उन्होंने चेंज किया। अब वो ये पता लगाना चाहते हैं कि क्या उनका मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो वो यूज़ कर रहे थे वो काम करती है या नहीं करती। तो वहाँ पे भी आपके पास क्या होता है, ये चला आता है कि जी जो है ना वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी आया कि कंपनी की सही थी या गलत थी। यहाँ पे भी आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है ना वो यूटिलाइज़ करते हैं। अच्छा, अगर हम नंबर 2 पे बात करें कि जी दूसरी एग्जांपल हम ले लें, साइंटिस्ट एग्जामाइन्स वेदर अ वैक्सीन इज इफेक्टिव और नॉट। लेट्स से जी कोई कंपनी ने, किसी ने जो है ना आपके पास वैक्सीन बनाई है। अब ये वेरीफाई करना है कि आया कि वो जो वैक्सीन है वो काम करती है नहीं करती। वो ये एग्जामाइन करने के लिए फिर वो इफेक्टिव है या नहीं है, क्या वो प्रॉपर किस्म का जो है ना इफेक्ट कर रही है नहीं कर रही मेडिसिन मरीज पे या फिर किसी पेशेंट पे। तो यहाँ पे भी आपके पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है ना वो काम आती है। अच्छा तीसरी अगर हम बात करें, अब प्रोफेसर इन्वेस्टिगेट्स वेदर ऑनलाइन लर्निंग इंप्रूव स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस और not। अगर कोई प्रोफेसर है या कोई लेक्चरर है फॉर एग्जांपल, अगर वो इन्वेस्टिगेट करना चाहता है कि अगर आया कि ऑनलाइन लर्निंग जो है ना वो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती। अब ये एक किस्म का हाइपोथेसिस है। मैं कहता हूं कि जी अगरचे अगर हम ऑनलाइन लर्निंग करेंगे
तो उससे फायदा क्या होगा कि जी ये बच्चों को जो है ना स्कूल तक नहीं आना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी तक नहीं आना पड़ेगा, कॉलेज तक नहीं आना पड़ेगा। उनकी जो है ना सिक्योरिटी जो है ना वो बची रहेगी। उनको जो है ना वो किसी टाइम भी अपनी क्लास ले सकते हैं। लेट्स से जी सब राजी हो गए जी हम जो है ना अफ्तारी के बाद रेडी हैं और हम ईशा में मगरिब के बाद ले सकते हैं या फिर शाम में ले सकते हैं, 7 बजे ले सकते हैं, 8 बजे क्लास ले सकते हैं। ना उनको सफर करके जाना पड़ेगा, उनका जो है ना पेट्रोल भी बचेगा, उनकी सेफ्टी भी होगी, उनकी सिक्योरिटी भी होगी, प्लस में लर्निंग ही करनी है वो ऑनलाइन बैठ के कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये एक किस्म का हाइपोथेसिस है। एक बंदा कहता है, अब एक प्रोफेसर जो है, जो लेक्चरर जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है कि जी वेदर ऑनलाइन लर्निंग इंप्रूव करती है नहीं करती। तो यहाँ भी आपके पास जो है ना वो आपके पास ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग आती है। अच्छा, की कंपोनेंट्स क्या है हाइपोथेसिस की कंपोनेंट्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। मेन हाइपोथेसिस टेस्टिंग के कंपोनेंट्स कौन से होंगे ये याद रखिएगा। सबसे पहला जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का कंपोनेंट है उसे हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस, जिसको हम एच नॉट से पढ़ते हैं फिर एच जीरो पढ़ते हैं। नल हाइपोथेसिस जिसको हम एच जीरो कहते हैं, ये क्या होता है। अच्छा, ये भी एक किस्म का क्लेम होता है, ये भी आप एक किस्म का क्लेम कर रहे होते हैं। और ये क्लेम क्या होता है जिसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। इसमें आप क्या करते हैं, आप एज्यूम करते हैं कि देयर इज नो इफेक्ट और नो डिफरेंस। यानी मिसाल के तौर पे एक बंदे ने हाइपोथेसिस दिया कि जी जो है ना फलाने मार्केटिंग स्ट्रेटजी ए जो है। अच्छा, या फिर हम ऑनलाइन लर्निंग ले लेते हैं कि जी ऑनलाइन लर्निंग जो है ना फायदा पहुंचाती है। एक बंदा कह रहा है कि फायदा पहुंचाती है और दूसरा बंदा कह रहा है कि फायदा नहीं पहुंचाती। अब ये दो डिफरेंट जो है ना आपके पास हाइपोथेसिस है। अब इन हाइपोथेसिस पे जो है ना ये इनको अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहेंगे हम अलग से। लेकिन जो आपके पास नल हाइपोथेसिस है उसमें आप क्या क्या अज्यूम करेंगे कि देयर इज नो इफेक्ट। आप क्या कहेंगे कि जी एक बंदा कहता है कि ऑनलाइन जो लर्निंग होती है आपके पास वो फायदा नहीं पहुंचाती। अच्छा, ना तो ऑनलाइन लर्निंग का कोई फायदा है और ना ही कोई डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल या तो मैं कहूंगा जी, या फिर कोई बंदा कहता है कि जी अच्छा अब फिजिकल लर्निंग बेहतर है या ऑनलाइन लर्निंग बेहतर है। अब एक बंदा कहता है कि जी ऑनलाइन लर्निंग बेहतर है। अब ये हो गया एक किस्म का अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कि जी ऑनलाइन लर्निंग बेहतर है फिजिकल लर्निंग से। ये हो गया आपके पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। दूसरा बंदा कहता है कि फिजिकल लर्निंग बेहतर है आपके पास ऑनलाइन लर्निंग से। ये भी आपके पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। लेकिन दूसरी तरफ आता है आपको नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, आप ये अज्यूम करते हैं कि देयर इज नो इफेक्ट और देयर इज नो डिफरेंस। इसमें क्या होगा कि आप क्या कहेंगे जी ना तो ऑनलाइन लर्निंग का कोई फायदा है ज्यादा इससे आपका फिजिकल लर्निंग से, यानी ऑनलाइन और फिजिकल लर्निंग दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। इसे कहते हैं आप नल हाइपोथेसिस, जिसको आप एच जीरो या फिर एच नॉट कहते हैं कि जी इसमें कोई फर्क नहीं होता ऑनलाइन लर्निंग में और फिजिकल लर्निंग में। दूसरे नंबर पे आपके पास आता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम H1 से लेट्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस पे आपको ये एक इफेक्ट लेते हैं, कौन सा, सजेस्ट एन इफेक्ट और डिफरेंस एग्जिस्ट। इसमें आप ये एग्जिस्ट ये आप क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं, आप ये सजेस्ट करते हैं कि जी वहां पे फर्क है। क्या फर्क है जी, आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे जी ऑनलाइन लर्निंग इज बेटर देन फिजिकल लर्निंग। अब ये एक किस्म का आपके पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया। नल हाइपोथेसिस क्या था कि ना तो ऑनलाइन लर्निंग फिजिकल लर्निंग से बेहतर है और ना ही दोनों में कोई फर्क एग्जिस्ट करता है। जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, कोई ना कोई फर्क होगा उसमें। तीसरे नंबर पे आता है आपके पास टेस्ट स्टेटिस्टिक। अब क्या करते हैं आप, इस पे आप टेस्ट अप्लाई करते हैं स्टेटिस्टिक का। सबसे पहले आप क्या करेंगे, याद रखिए की कंपोनेंट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग में सबसे पहले आप नल हाइपोथेसिस लेते हैं, जिसमें आपके पास आप ये अज्यूम करेंगे देयर इज नो इफेक्ट देयर इज नो डिफरेंस। लेकिन नंबर 2 पे आता है आपके पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें आप क्या कहते हैं, आप या तो पॉजिटिव की तरफ जाते हैं या फिर नेगेटिव की तरफ जाते हैं। आप या तो कहेंगे फायदा है, कोई इफेक्ट होता है, या फिर आप कहेंगे कोई इफेक्ट नहीं होता। नंबर 3 पे आता है आप स्टेटिस्टिक्स के टेस्ट अप्लाई करते हैं। अब वो टेस्ट स्टेटिस्टिक क्या होता है, आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं यूज टू इवेल्युएट हाइपोथेसिस। You would be taking a numerical value. On the basis of that, it would be used to evaluate the hypothesis. आप एक वैल्यू लेंगे जिसकी बेसिस पे आप क्या करेंगे, हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। ये तो आपके पास तीसरा स्टेप। पहला क्या था, नल हाइपोथेसिस लेंगे। दूसरा क्या था, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेंगे। तीसरा क्या है, आप कोई स्टैटिस्टिक टेस्ट अप्लाई करेंगे, वो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेके आप जो है ना यूटिलाइज करेंगे। अच्छा, फोर्थ नंबर पे आपके पास आता है सिग्निफिकेंस लेवल, अल्फा भी जिसको हम कहते हैं। सिग्निफिकेंस लेवल क्या है, द प्रोबेबिलिटी थ्रेशोल्ड फॉर रिजेक्टिंग एच नॉट। अब देखिए, आपने आपने नल हाइपोथेसिस लिया, प्लस में आपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिया, उसके बाद आपने एक टेस्ट अप्लाई किया। अब टेस्ट अप्लाई जब आप करेंगे तो उस टेस्ट के बाद आपको ये पता जरूर चल जाएगा कि भाई या तो जो है ना
आप जो आपका नल हाइपोथेसिस था, नल हाइपोथेसिस क्या कह रहा था कि कोई फर्क रखता ही नहीं है, कोई इफेक्ट होता ही नहीं है ऑनलाइन लर्निंग का। अब आप उसको या तो गलत साबित करेंगे या आप उसको सही साबित करेंगे। अगरचे कोई फर्क एग्जिस्ट नहीं करता तो आप क्या कहेंगे, उसका लेवल क्या है कि द प्रोबेबिलिटी थ्रेशोल्ड फॉर रिजेक्टिंग एच नॉट। अगर मैं कहता हूं कि जी इसको रिजेक्ट करने का, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 100% है, तो इसका मतलब है फर्क एग्जिस्ट करता है। और अगर कोई प्रोबेबिलिटी इसको रिजेक्ट करने की 0 है तो इसका मतलब क्या है कि जी नल हाइपोथेसिस करेक्ट, और आपका टेस्ट जो है ना वो वेरीफाई हो गया कि जी आप जो है ना नल हाइपोथेसिस सही था, जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो था वो गलत था। इसे कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल, और ये आप अल्फा, इससे आप अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। 5वें नंबर पे आपके पास आता है पी वैल्यू। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के कंपोनेंट्स में ये चौथी 5वीं वैल्यू है, जिसमें आप क्या करते हैं, पी वैल्यू मेजर करते हैं। इट इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एच नॉट। ये क्या बयां करती है आपके पास, ये आपको बताती है कि जो आपके पास मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस है अगेंस्ट द एच नॉट, यानी जो आपने नल हाइपोथेसिस दिया था, क्या कि कोई फर्क एग्जिस्ट ही नहीं करता, कि उसके अगेंस्ट जो है, उसके अगेंस्ट आप कितना स्ट्रेंथ है आपकी, ये उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो कितना उससे आगे, या कितना परसेंट उससे जो है ना रिलाय करता है, क्या 0% है, 1% है, 2% है, 100% है, 50% है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जी उसकी जो मेजर है से 100% है, तो इसका मतलब है पी वैल्यू मेजर जो है वो ज्यादा स्ट्रेंथन है। तो यानी ये चीज आपके पास 5वें नंबर पे आती है। पहला क्या आपका नल हाइपोथेसिस, दूसरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तीसरा स्टैटिस्टिक टेस्ट, चौथा आपके सिग्निफिकेंस लेवल। आप ये चेक करेंगे कि वो रिजेक्ट कितना कर रही है, और रिजेक्ट अगर नहीं कर रही फॉर एग्जांपल तो उसकी पी वैल्यू कितनी है, पी वैल्यू यानी वो मेजर कितना आपके पास कर सकता है। अच्छा, फिर आता है आपके पास एग्जांपल। अच्छा, इसकी एग्जांपल अगर हम लें, टेस्टिंग वेदर ड्रिंकिंग कॉफी इंप्रूव्स मेमोरी रिटेंशन और नॉट। आपने ये देखा ही होगा कि जी लोग कहते हैं कि जी अच्छा कॉफी पी लो, उससे जो है ना आपको फायदा होगा और मेमोरी आपकी बेहतर रहेगी और इंप्रूव हो जाएगी, या फिर आपको जो है ना चीजें याद आ जाएंगी दोबारा, या फिर आपका जो है ना सर का दर्द खत्म हो जाएगा। ये एक किस्म की हाइपोथेसिस है आपके पास। अब इस हाइपोथेसिस पे आप ये सारे अप्लाई करेंगे। नल हाइपोथेसिस पे, नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि जी ड्रिंकिंग द कॉफी has no effect on memory retention or memory retention, and it has no difference but on the memory there is no difference whether, okay जी जी कोई क्वेश्चन है? Yes, sir. Sir, can you जी बताएं। please repeat the 4 and 5 key component? ओके ओके ओके। अच्छा, हाँ अगर 4 Hello? और 5 की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा क्या है, यानी द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक नल हाइपोथेसिस है आपके पास। अब नल हाइपोथेसिस क्या है कि जी ओके यस यस बिल्कुल। आप फोर्थ की अगर बात करें, देखिए फोर्थ में यही है, अगर आपको समझ, मुझे आपकी वो राइटिंग में थोड़ा इशू हुआ, पता नहीं क्या समझ नहीं आया काफी। आई थिंक आप फोर्थ का कह रहे हैं, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ फोर्थ और फिफ्थ को दोबारा। यानी आपने कोई हाइपोथेसिस लिया, फॉर एग्जांपल जी आपने कहा कि जी जो है ना कॉफी पीना, जो है ना कॉफी पीने से क्या होती है, मेमोरी रिटेंशन जो है ना वो इंप्रूव होती है, उसमें परफॉर्मेंस जो है ना वो इंप्रूव होती है। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये है, आप क्या कह रहे हैं कि जी कॉफी पीने से जो है ना मेमोरी रिटेंशन जो है ना वो इंप्रूव होती है, लेकिन इसका नल हाइपोथेसिस क्या होगा, इसका नल हाइपोथेसिस ये होगा कि मेमोरी रिटेंशन पे कोई फर्क नहीं होता, आप ड्रिंकिंग करें कॉफी की या ना करें। ये आपके पास नल हाइपोथेसिस है। अब जब आप टेस्ट करेंगे इसका नल हाइपोथेसिस का, तो सिग्निफिकेंस लेवल बनेगा कि जी जो आप ये कह रहे हैं कि जी कॉफी पीने से मेमोरी इंप्रूव होती है, मेमोरी टेंशन, वो जो है नल हाइपोथेसिस को कितना परसेंट रिजेक्ट करती है, 100% रिजेक्ट करती है, 0% रिजेक्ट करती है। अगर अगर वाकई में, अगर वाकई में कॉफी पीने से जो है ना मेमोरी रिटेंशन इंप्रूव होती है, तो इसका मतलब है आप जो है ना नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं, और उसकी रिजेक्शन लेवल होगी कोई ना कोई। और लेट्स से वो रिजेक्शन लेवल अगर 50% हो, मिसाल के लिए, आप पढ़ेंगे आगे किस तरह से वो प्रोबेबिलिटी बनती है। तो अब हम क्या कहेंगे कि ये नल हाइपोथेसिस क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। इसी को कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। अब वो कितना है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी, ये लेवल बताएगा कि वो कितनी उसकी परसेंटेज है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। 100% रिजेक्ट करता है, या फिर 50% रिजेक्ट करता है, 25% रिजेक्ट करता है,
या जो है ना मुकम्मल तौर पे 100% रिजेक्ट कर रहा होता है आपके पास नल हाइपोथेसिस को। फिर आप उसकी पी वैल्यू निकालते हैं कि वो जो आपके पास मेजर पी वैल्यू में क्या करते हैं, मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एच नॉट। एच नॉट के अगेंस्ट जो है ना उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। कहीं ऐसा तो नहीं है फॉर एग्जांपल कि जी अगर आपने जो है ना इम्प्रूव लेट से कॉफी पी, अब कॉफी जो है ना वो कहीं चले थोड़ी देर के लिए तो इम्प्रूव कर दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद दोबारा फिर मेमोरी लूज हो गई। तो इसका मतलब है ये पी वैल्यू बताएगी आपके पास कि उसकी मेजर कितनी है, कितना लेवल पे जो है ना उसको जो है ना स्ट्रेंथ उसकी मौजूद है अगेंस्ट दी नल हाइपोथेसिस। आप इसको इतना ज्यादा परेशान हो, ये आगे ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आगे हम सारा जो है ना इसको कवर करेंगे, पी वैल्यू क्या होती है, सिग्निफिकेंस लेवल क्या होती है, अल्फा क्या होता है, ये जो है ना आगे इंशाल्लाह और इम्प्रूव समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सिर्फ इसको इतना समझें कि सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है। ये प्रोबेबिलिटी शो करता है कि वो जो है ना जो आप जो हाइपोथेसिस दे रहे हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वो नल हाइपोथेसिस को कितना रिजेक्ट कर रहा है, कितना परसेंट रिजेक्ट कर रहा है। और पी वैल्यू मेजर क्या बताती है, कितना मजबूती से रिजेक्ट कर रहा है या फिर कितना स्ट्रांगली उसके अगेंस्ट है। क्या या हमेशा कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर कॉफी पीते तो 100% ही वो उसको जो है ना वो करता है अपना नलीफाई करता है। तो ये हम चेक करते हैं। और कोई क्वेश्चन है, आगे बढ़े। यस सर, कोई क्वेश्चन नहीं। हाँ जी, ओके जी, ओके थैंक यू। अच्छा, तो ये आपके पास यानी आ गया, ये आगे इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे, डू नॉट वरी अबाउट दिस ऑल द थिंग्स। फिलहाल सिर्फ इंट्रोडक्शन लेवल पे ही। ओके, अब अगर हम बात करें आपके पास रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स कौन कौन सी है, कहाँ जहां पे आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग अप्लाई कर रहे हो। अगर हम बात करें मेडिकल की, तो डज अ न्यू ड्रग रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब ये क्वेश्चन है जी, एक किस्म का ये हाइपोथेसिस है। ये आपने जो है ना एक किस्म का हाइपोथेसिस दे दिया, आपने हाइपोथेसिस क्या दिया, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दिया कि अ न्यू डज अ न्यू ड्रग रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल। किसी बंदे का लेट से कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है, अब कोई नई मेडिसिन बनी है, क्या वो वाकई में जो है ना उसका रिड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर रिड्यूस करता है, फिर आप क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस बनाएंगे सबसे पहले। ये एक किस्म का अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। क्या कि आपने कहा कि जी जो आपके पास ये तो क्वेश्चन है जी, एक किस्म का प्रॉब्लम है आपके पास, डज अ न्यू ड्रग रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब इसका हाइपोथेसिस क्या बनेगा कि न्यू ड्रग रिड्यूसेस द कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये एक हाइपोथेसिस है। और दूसरा क्या होगा, न्यू ड्रग डज नॉट रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब ये दो हाइपोथेसिस बन गए आपके पास, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अब नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि यूजिंग द न्यू ड्रग नीदर रिड्यूसेस, मतलब ना तो वो जो है ना अपना नीदर रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल, नीदर और नॉर इंक्रीज, ना तो कम कर रही है ना ज्यादा कर रही है। अब ये किस्म का आपके पास क्या हो गया, नल हाइपोथेसिस हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसकी टेस्टिंग अप्लाई करेंगे, टेस्ट करने के बाद आप पता लगाएंगे, कोई वैल्यू आपको मिलेगी, फिर आपको अल्फा निकालना पड़ेगा। अल्फा क्या करेगा, अल्फा ये बताएगा कि कितना परसेंट जो है ना वो रिड्यूस कर रहा है और रिजेक्ट कर रहा है नल हाइपोथेसिस को। नल हाइपोथेसिस क्या था कि ना तो वो कम करता है और ना ही ज्यादा करता है, बल्कि बैलेंस रहता है। तो यहाँ पे आप अल्फा निकालेंगे कि कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो रिड्यूस करेगा और कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो रिड्यूस नहीं करेगा। फिर आपके पास क्या आता है, उसका जो है ना बी वैल्यू आती है। फिर वो स्ट्रेंथ बताती है क्या वाकई जो है ना कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ना मुकम्मल तौर पे रिड्यूस हो जाता है कुछ अरसे के लिए, या फिर जो है वो तो बस थोड़ी देर के लिए हुआ था इंपल्सिव लेवल पे और फिर खत्म हो गया। दूसरी एग्जांपल बिजनेसेस में आपके पास आ सकती है, जैसे कि बिजनेस में देखें, डज एन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन इंक्रीज प्रोडक्ट सेल। ये भी आपके पास एक किस्म का हाइपोथेसिस है। अच्छा, ओके, तो फिर आप क्या करते हैं कि जी आप पता लगाते हैं कि वेदर क्या वाकई में जो है ना लेट्स से जी ये रिड्यूस कर रहा है नहीं कर रहा है, या फिर आपके पास जो है ना अ, जो आपके पास हाइपोथेसिस है फॉर एग्जांपल इसका बिजनेस में आपने देखा कि डज एन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन इंक्रीजेस प्रोडक्ट सेल। नंबर 3 पे अगर हम बात करें एजुकेशन, डू स्टूडेंट्स हु स्टडी एट नाइट परफॉर्म बेटर इन एग्जाम। अब ये एक किस्म का एग्जांपल है, ये आपके पास हाइपोथेसिस है, जिसमें आप ये पता लगाते हैं कि क्या वाकई में जो बंदे रात को पढ़ते हैं, नाइट स्टडी करते हैं, तो क्या वो एग्जाम में बेटर परफॉर्म करते हैं, या वो लोग जो दिन में स्टडी करते हैं वो बेटर परफॉर्म करते हैं। एक और आप हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि वो लोग जो रात को 10 बजे के बाद पढ़ते हैं वो ज्यादा परफॉर्म करते हैं, या वो लोग जो रात को 10 से 4 बजे तक सोते हैं और सुबह में पढ़ते हैं 4 बजे के बाद, 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, क्या वो ज्यादा परफॉर्म करते हैं। अब ये भी आपके पास एक किस्म की हाइपोथेसिस हो गई। अब आप इसमें वेरीफाई करेंगे, आप क्या करेंगे, टी टेस्टिंग, आप सॉरी
पी वैल्यू टेस्टिंग अप्लाई करेंगे आप इसके ऊपर, इसके साथ आप अल्फा की वैल्यू वेरीफाई करेंगे, ये हम देखेंगे कैसे होती है। इंजीनियरिंग में भी इसकी एग्जांपल आ सकती है, डज अ न्यू मटेरियल मेक ब्रिजेस मोर ड्यूरेबल, क्या जो है ना नए मटेरियल जो आजकल यूज हो रहे हैं वो क्या ब्रिजेस को मोर ड्यूरेबल बनाते हैं, ये उसकी एग्जांपल में आ जाएगा। स्पोर्ट्स में अगर बात करें, डज अ न्यू ट्रेनिंग मेथड इंप्रूव एथलीट परफॉर्मेंस, अगर लेट्स से जो एथलीट्स की परफॉर्मेंस के लिए न्यू मेथड जो आप ट्रेनिंग के यूज करते हैं, क्या वो बेनिफिट आपको करते हैं नहीं करते, तो ये सारे के सारी चीजें जो है ना आपके उसमें अप्लाई आ जाएंगी। अच्छा, अगर आप बात करें स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कौन कौन से आपके पास स्टेप्स आपको लेने चाहिए जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, तो ये एक सीक्वेंस से गुजरता है। नंबर 1 क्या है, डिफाइन द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जब भी आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे तो आपने सबसे पहले क्या आप डिफाइन करना है, नल हाइपोथेसिस डिफाइन करना है, और प्लस में आपके पास आपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है ना आपने डिफाइन करना है। दूसरे नंबर पे आपने सिग्निफिकेंस लेवल मेजर करना है, अल्फा वैल्यू, हम पढ़ेंगे अल्फा क्या होता है। अल्फा आप कितना रखेंगे, कितना परसेंट रखेंगे, 5% रखेंगे या आप कितना परसेंट रखेंगे, ये सारी वैल्यू जो है ना हम पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी उसकी, 100% होगी या 5% होगी, कितना परसेंट होगी। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट टेस्ट स्टैटिस्टिक। आप टेस्ट स्टैटिस्टिक अप्लाई करेंगे कोई प्रॉपर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू के जरिए। अब ये क्या होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। चौथे नंबर पे क्या होती है, कंप्यूट द टेस्ट स्टैटिस्टिक फ्रॉम दी सैंपल डेटा। आपके पास सैंपल डेटा होगा, जैसे हमने बायोस्टैटिस्टिक 1 में हमने स्टडी किया था, उसमें आपके पास सैंपल डेटा के ऊपर क्या करेंगे, आप स्टैटिस्टिक टेस्ट अप्लाई करेंगे, फिर आप उसको कंप्यूट करेंगे, वहां से आपको वैल्यू मिलेगी। मिसाल के तौर पे आपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ले ली, मीन ले लिया, मोड ले लिया, मीडियन ले लिया आपने, या फिर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन ले ली, तो आप ये हम सारा जो है वहां से लेके आएंगे वैल्यूज। ओके, फिर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे द टेस्ट स्टैटिस्टिक विद द क्रिटिकल वैल्यू। जो क्रिटिकल वैल्यू होती है वो आप अपनी तरफ से डिफाइन करते हैं कि जी ये जो वैल्यू है ना, मिसाल के तौर पे ये 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 4% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो क्रिटिकल वैल्यू होती है आपके पास, उसके ऊपर आप टेस्ट स्टैटिस्टिक अप्लाई करते हैं। फिर आप क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, यू मेक अ डिसीजन रिजेक्ट और फेल टू रिजेक्ट एच नॉट। अब जब आप ये सारे स्टेप अप्लाई कर देते हैं पांचों के पांचों, तो फिर आप जब छठे नंबर पे आते हैं, जब आप डिसीजन लेने वाले होते हैं, तो आप या तो उस मेडिसिन को रिजेक्ट करते हैं या फिर आप उस मेडिसिन को एक्सेप्ट करते हैं। जब आप उस मेडिसिन को रिजेक्ट करोगे तो आप क्या करोगे, नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, और जब आप उसको एक्सेप्ट करोगे तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो। तो ये आपके पास इस स्टेप्स में आ जाएगा। इसकी एग्जांपल क्या है आपके पास, टेस्टिंग वेदर अ ट्यूटोरिंग प्रोग्राम इंप्रूव्स स्टूडेंट्स ग्रेड्स। अब आपने ये टेस्ट अप्लाई करना है कि फॉर एग्जांपल जी स्टूडेंट्स जो है ना, लेट्स से डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी के जो स्टूडेंट्स हैं, वो बायोस्टैटिस्टिक्स की क्लास ले रहे हैं, लेकिन अच्छा क्लास के अलावा भी अगर वो पढ़ते हैं फॉर एग्जांपल, या फिर ट्यूटरिंग करते हैं, कोई अपने ट्यूटर से जाके डिस्कस करते हैं, ट्यूशन लेते हैं, पढ़ते हैं, क्या वो उसके ग्रेड्स पे कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता उससे। तो इस किस्म की जो है ना टेस्टिंग भी आपके पास जो है ना आप कर सकते हैं, ये भी आपके पास हाइपोथेसिस में आता है। फिर आता है आपके पास, अच्छा इसकी एग्जांपल क्या है आपके पास, टेस्टिंग अ न्यू डाइट प्लान फॉर एग्जांपल। अब आपको न्यू डाइट प्लान आप टेस्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है। No, sir. हाँ जी, नो सर नो। कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक। ओके नो सर। ओके ओके जी। सो यानी अगर हम इसकी बात करें, अब आगे बढ़ लेते हैं। यस, अब हम कोई एग्जांपल लेते हैं इसकी, लेट्स से जी आपने जो है ना, यू आर टेस्टिंग अ न्यू डाइट प्लान, आपने एक नया डाइट प्लान जो है ना टेस्ट कर रहे हैं कि जी मेरा ये डाइट प्लान सही है नहीं है, कहीं ये मेरा जो है ना कोलेस्ट्रॉल लेवल तो नहीं बढ़ा रहा, कहीं ये मेरे अमीनो एसिड्स में इशू तो नहीं कर रहा, कहीं ये मेरे डीएनए में कोई इशू तो नहीं कर रहा, कहीं म्यूटेशन आता तो नहीं, और इसकी वजह से अब वो आप चेक करना चाहते हैं। अब आपका क्वेश्चन सबसे पहले क्या होता है, आपके पास रिसर्च क्वेश्चन होता है। अब सबसे पहले जिसको हम क्या कहते हैं, बायोस्टैटिस्टिक प्रॉब्लम कहते हैं, आप स्टैटिस्टिक प्रॉब्लम कहते हैं। अब सबसे पहले आपके पास दिमाग में क्वेश्चन होगा कि डज अ न्यू डाइट प्लान हेल्प पीपल लूज वेट, क्या ये जो डाइट प्लान है ये आपके पास वेट को लूज करने में काम आता है, ये आपके पास रिसर्च क्वेश्चन हो गया। फिर आप इसके ऊपर क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस अप्लाई करेंगे। नल हाइपोथेसिस क्या करेंगे कि डाइट हैज नो इफेक्ट ऑन वेट लॉस, ये आपके पास हो गया नल हाइपोथेसिस। अब आपके पास आएगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस 1, वो क्या है, द डाइट लीड्स टू वेट लॉस। अब आपने किसी रिसर्च एक जो है ना प्रॉब्लम की तरफ आप जो है ना अपने आप को डाइवर्ट करेंगे, द डाइट लीड्स टू वेट लॉस, ये आपके पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप डेटा लेंगे कुछ ना कुछ, वेट मेजरमेंट्स बिफोर एंड आफ्टर द डाइट। अब आप क्या करेंगे, कुछ सैंपल डेटा लेंगे कि जी
वेट, ये डाइट प्लान अप्लाई करने से पहले 10 में दिनों का टेस्ट आप अपने आपका जो है ना वेट की मेजरमेंट कर लेंगे 10 दिन की। अच्छा, फिर आप क्या करेंगे, डाइट प्लान अप्लाई करेंगे, फिर आप क्या करेंगे 10 दिन के खाने के बाद फिर वो चेक करेंगे कि आया कि ये आप न्यू डाइट प्लान जो आपने यूज किया वो आपके वेट को लूज कर रहा है नहीं कर रहा है। अब ये एक किस्म का आपके पास जो है ना मेजरमेंट हो गई। फिर मेथड क्या है इसमें, आप क्या करेंगे, कंडक्ट अ टी टेस्ट टू कंपेयर वेट लॉस चेंजेस। अब टी टेस्टिंग अप्लाई करेंगे, या हम पढ़ेंगे कि टी टेस्टिंग किस तरह से होती है, ये आगे हमारे पास अगली क्लासेस में आएगा। फिर आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, पी इज 0 पॉइंट लेस देन 0.05, रिजेक्ट एच नॉट। अगर जो पी वैल्यू जो मेजरमेंट आएगी हमारे पास, ये आगे जो हम जो मेजरमेंट कर रहे होंगे, अगर वो लेस देन 0.05 आ रही है तो आप रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट को। अदरवाइज फेल टू रिजेक्ट एच नॉट। अदरवाइज आप क्या, अगर वो 0.3 जो है आपके पास जो वैल्यू आएगी, अगर वो उसकी उससे कम है, फॉर एग्जाम्पल 0.05 से कम है, तो ठीक है, आप रिजेक्ट कर दो एच नॉट को। एच नॉट को यानी अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो आपका नल हाइपोथेसिस है उसको आप क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। रिजेक्ट क्या कर दो कि जी जो आपने डाइट चेंज की है वो वाकई में जो है ना आपके वेट को लूज कर रही है। अगर वो आप अप्लाई, अगर वो लूज पी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0.05 आ रही है, 5% से ज्यादा आ रही है, तो फिर आप उसको जो है ना रिजेक्ट नहीं करोगे। फिर आप क्या कहोगे कि जी आपका जो है ना जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट नहीं हो पाया, जबकि आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है ना वो रिजेक्ट हो गया। तो ये इसमें जो है ना आपके पास इसमें आ जाएगा। अच्छा, फिर अगर हम बात करें एग्जांपल टेस्टिंग अ न्यू टीचिंग मेथड्स, लेट्स से आप न्यू टीचिंग मेथड्स पे जो है ना हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं आप। रिसर्च क्वेश्चन क्या है, डज अ न्यू टीचिंग मेथड इंप्रूव्स स्टूडेंट परफॉर्मेंस। क्या जो है ना न्यू टीचिंग मेथड जो अप्लाई हो रहे हैं वो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। अब इसका नल हाइपोथेसिस क्या होगा, द न्यू मेथड डज नॉट अफेक्ट द स्टूडेंट ग्रेड। ये हो गया आपके पास नल हाइपोथेसिस। फिर आप क्या करोगे, H1 क्या आपके पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, द न्यू मेथड इंप्रूव्स स्टूडेंट ग्रेड्स। यहाँ पे आप ये क्लेम करोगे कि जो न्यू मेथड यूज किए गए हैं वो स्टूडेंट्स के ग्रेड को इंप्रूव करते हैं। दूसरा आपके पास क्या आता है, सैंपल, आपके पास आप क्या लेंगे, डेटा लेंगे, सैंपल टेस्ट डेटा लेंगे, स्टूडेंट टेस्ट स्कोर बिफोर एंड आफ्टर द न्यू मेथड। आप क्या करेंगे, पहले मेथड अप्लाई करने से पहले स्कोर ले लेंगे बच्चों के, स्टूडेंट्स के, और वो मेथड अप्लाई करने के बाद भी ले लेंगे। आपको पता चल जाएगा कि ग्रेड उसके सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आपने जो मेथड अप्लाई किया टीचिंग का उसके बाद। अब स्टैटिस्टिकल टेस्ट अब अप्लाई करेंगे, यूज अ पेयर्ड टी टेस्ट टू कंपेयर स्कोर्स। अब ये टी टेस्ट क्या होते हैं ये हम ये डिस्कस करेंगे आगे। उसके जरिए आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि आया कि ये मेजरेबल है या नहीं। कंक्लूजन क्या होगा, इफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज सिग्निफिकेंट रिजेक्ट एच नॉट। फिर वही बात, अगर की पी की वैल्यू जो है ना वो जो आपने डिफाइन की थी, अगर वो 0.05 से वाकई लेस है, तो आप क्या कर देंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को ले लेंगे, और आप जो है ना फिर वही टीचिंग मेथड जो है ना अप्लाई करना शुरू कर देंगे। अच्छा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आप लोग मिस्टेक क्या कर रहे हो, तो कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। सबसे पहला कंफ्यूजन रिलेशन, कोरिलेशन विद कॉजेशन। अब कंफ्यूजन, कंफ्यूजिंग कोरिलेशन विद कॉजेशन, कुछ लोग क्या करते हैं कोरिलेशन को कॉजेशन के साथ जो है ना नेगेटिवली जो है ना वो कंफ्यूज कर देते हैं। अब कोरिलेशन क्या है, कोरिलेशन का मतलब होता है कि एक चीज दूसरे चीज पे रिलेट कर रही है। रिलेट कैसे, कि जी मैं कहता हूँ कि जी अगर स्टूडेंट्स जो है अ, अगर आप लोग जो है ना खाना खाएंगे तो आपकी हेल्थ जो है ना वो बेटर होगी। अगर आप शुगर लेवल को रिड्यूस करने के मेडिसिन लेंगे तो जो है ना आपके पास जो है ना उस आपकी हेल्थ जो है ना वो इम्प्रूव होगी। ये आपके पास कोरिलेशन में आ जाता है। अब इसमें कॉजेशन में क्या होता है, कॉजेशन में हम ये करते हैं कि एक वेरिएबल जो है ना दूसरे वेरिएबल को कॉज करता है। एक मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जी जो है ना इन्फेक्शन हो गई, या फिर आपने क्या किया जी लेट्स से कोई मेडिसिन अप्लाई की और खाई आपने, और मेडिसिन खाने से जो है ना रिएक्शन हो गया। जो रिएक्शन हुआ है मेडिसिन का, आपने जो जो आपकी बॉडी को जो रिएक्शन जो हो रहा है किसी मेडिसिन खाने की वजह से, वो जो आपने मेडिसिन खाई है ना उस मेडिसिन की वजह से जो है ना रिएक्शन हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉजेशन है। एक वेरिएबल जो है ना दूसरे वेरिएबल को कॉज कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, यानी इसमें एक डिपेंडेंट होगा और दूसरा इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन जब बात करें कोरिलेशन की, कोरिलेशन में जो है ना वो क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे को कोरिलेशन, उनके दरमियान रिलेशन होता है। अब वो डायरेक्ट रिलेशन भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। वो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी जो आपके पास लेट्स से अच्छी इनकम जो होती है घरों में, जिस घर में अच्छी इनकम होती है उस घर के स्टूडेंट्स पढ़ते भी ज्यादा बेहतर है, या उस घर की तालीम अच्छी होती है। और दूसरा मैं कहूँ कि जी अच्छी कुछ घरों के जो जिनमें इनकम कम होती है उनके बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे नहीं होते।
ये एक किस्म का कोरिलेशन है, ये कॉजेशन नहीं है। पढ़ने से जो है ना, वैसे तो बज़ाहिर नजर नहीं आता कि पढ़ने से कोई जो है ना इनकम का कोई ताल्लुक है, क्योंकि जी पढ़ना तो पढ़ाई से होता है, वो इनकम से थोड़ी होता है। तो एक तो कोरिलेशन ये बन जाता है आपके पास। लेकिन कॉजेशन दूसरा क्या है, कॉजेशन को हम क्या देखेंगे कि जी फूड की फॉर्म में देखेंगे। अब फूड अगर आप अगर पिज्जा खाएंगे तो ही आप जिंदा रह पाएंगे। खाना खाना जो है ना वो आपकी हेल्थ को बरकरार रखने के लिए होता है, तो यहाँ पे आपके पास कॉजेशन आता है। अच्छा, दूसरा क्या करते हैं आप, यानी आपने कंफ्यूज नहीं करना कोरिलेशन को कॉजेशन के साथ। दूसरे नंबर पे आता है आपका यूजिंग अ स्मॉल सैंपल साइज लीडिंग टू अनरिलायबल रिजल्ट्स। आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते वक्त आप क्या करते हैं, बहुत कम लोगों पे जो है ना रिसर्च करते हैं। कम लोगों को साइज लेने की वजह से क्या होता है, वो रिजल्ट जो है ना उतने रिलायबल नहीं होते, और वो जो है ना आप अच्छे से जो है ना चीजों को अच्छे से डील नहीं कर पा सकते। यहाँ पे भी आप गलती करते हो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। तीसरा क्या करते हैं, मिस इंटरप्रेटिंग द पी वैल्यू। पी वैल्यू का मिस इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। पी वैल्यू क्या है हम आगे पढ़ेंगे, उसको आप सही से समझ नहीं पाते, तो उसके लिए जो आप मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से जो है ना आप गलती कर देते हैं। जब हम आगे पी वैल्यू पढ़ रहे होंगे तो ये कवर हो जाएगा वहां पे। चौथे नंबर पे आप क्या करते हैं, चूजिंग द रॉन्ग स्टैटिस्टिकल टेस्ट। आपने यूज करना था मीन, आपने यूज कर दिया मॉड। आपने यूज करना था आप स्टैंडर्ड डेविएशन, आपने सिंपल यूज कर दिया सिंपल डेविएशन। तो रॉन्ग जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं, उसको गलत चूज करने से भी आप गलतियां कर देते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने में, और रिजल्ट जो होते हैं वो नेगेटिव आ जाते हैं। नंबर 5 गलती क्या कर रहे होते हैं आप, नॉट चेकिंग assumptions ऑफ नॉर्मेलिटी एंड इंडिपेंडेंस। आप नॉर्मेलिटी और इंडिपेंडेंस को चेक नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जांपल क्या जी, आया के जो चीजें जो है वो एक दूसरे के जो assumptions आपने लिए हैं, जो भी आप assumption ले रहे हैं, क्या वो उसके साथ नॉर्मेलिटी के साथ बिहेव करते हैं, नहीं करते। कहीं उनमें इंडिपेंडेंसी तो नहीं है कि जी आप एक रिजल्ट आपने एक वेरिएबल ऐसा लिया हुआ है जो उस पर डिपेंड ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जी आपके पास यस आपने जो है ना आपने रनिंग करनी है लेट्स से। अब रनिंग करने का ताल्लुक मैं लगाऊं किसके साथ, गाड़ी के साथ, कि जी अगर आपके पास जो है ना अच्छी गाड़ी होगी तो आप अच्छे से रनिंग कर पाएंगे। भाई अच्छी गाड़ी का रनिंग के साथ क्या ताल्लुक, कोई इसके साथ कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं। गाड़ी में आप रनिंग कर ही नहीं सकते, गाड़ी का ताल्लुक डायरेक्टली कहीं पे हमें नजर नहीं आता रनिंग के साथ, क्योंकि रनिंग तो पैदल होगी आपके पास। तो यानी आपने जो है ना इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी का भी चेकअप जो है ना वो करना है। तो ये गलतियां आप अक्सर औकात कर रहे होते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है, कंपनी इनकरेक्टली assumes दैट हाई वेबसाइट ट्रैफिक लीड्स टू मोर सेल्स। कभी कभी कोई कंपनी क्या कर लेती है, वो इनकरेक्टली अज्यूम कर लेती है कि हाई वेबसाइट ट्रैफिक, यानी अगर ट्रैफिक ज्यादा होगी तो सेल भी बढ़ेगी। कोई लाजमी तो नहीं है ट्रैफिक ज्यादा होने से सेल बढ़ेगी। आप जो है ना आपकी वेबसाइट जो है ना वो लेट्स से जो है मेडिकल से रिलेटेड है, और आप उसमें सेल कर रहे हो, उस वेबसाइट पे आप सेल कर रहे हो जो है ना अपना इलेक्ट्रॉनिक का सामान, तो मेडिकल की वेबसाइट पे इलेक्ट्रॉनिक का सामान जो है ना वो काम ही नहीं करेगा, भले कितनी भी ऑडियंस आए। क्योंकि आप जो आपकी ऑडियंस आ रही है किसी वेबसाइट पे, वो आ रही है मेडिकल से रिलेटेड, और आप बेच रहे हो उसको इलेक्ट्रॉनिक का सामान, तो वो क्यों आएगी वहां पे, क्यों बाय करेगी वहां से आके। तो यानी ये इनकरेक्टली आप अज्यूम कर लेते हो, वहां पे भी आप गलती कर रहे होते हैं। अच्छा, सैंपल साइज की इंपॉर्टेंस क्या है, जितना if a small sample can lead to incorrect conclusion, whenever there is a small sample it can lead to incorrect conclusions, and it would be very difficult to rely on the result because the sample was very smaller. अगर 10 बंदों का सैंपल है जी, उस पे कैसे हम रिलाई कर सकते हैं, वो सही से डिपेंड नहीं कर पाएगा। जितने ज्यादा बड़ा सैंपल होगा उतना अच्छा आप जो है ना रिजल्ट जो है ना वो कंक्लूड कर पाएंगे। लार्जर सैंपल्स प्रोवाइड मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स। जितने लार्जर सैंपल्स होते हैं तो रिजल्ट जो है ना उतने रिलायबल होते हैं, एक्यूरेट होते हैं। एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल अ सर्वे विद ओनली 10 पीपल वर्सेस अ सर्वे विद 1000 पीपल। अगर आप किसी प्रोडक्ट की सर्वे करना चाहते हैं, अगर आप 10 लोगों से सर्वे कर रहे हैं तो उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, जबकि 1000 लोगों से आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेडिकल ट्रायल विद 50 पेशेंट्स, अगर कोई आप मेडिकल ट्रायल कर रहे हैं किसी पेशेंट पे, अगर आप वो ट्रायल 50 लोगों पे करेंगे तो उतना ज्यादा वो फायदेमंद नहीं होगा, जबकि वही ट्रायल अगर आप 5000 लोगों पे करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, टेस्टिंग अ न्यू engine's efficiency with 3 cars versus 100 cars। आपने जी एक नया इंजन बनाया है, आप जो है ना उस इंजन की एफिशिएंसी को मेजर करना चाह रहे हैं कि जी अगर आप 3 कार्स पे मेजर करेंगे तो वो इतना फायदेमंद नहीं होगा, जबकि अगर वो 100 कार्स पे आप मेजर करेंगे तो इट वुड बी ऑफ वेरी ग्रेट रिजल्ट्स। ओके जी, इसकी अगर हम समरी इसको समराइज करें तो ये हमारे पास जितना हमने इंट्रोडक्शन किया हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, क्योंकि सिंपल हमारे पास हाइपोथेसिस का सॉरी टेस्टिंग का एक किस्म का हमने इंट्रोडक्शन किया है ना, हमारे मेन टॉपिक्स फिर आगे इंशाल्लाह हम लेके चलेंगे। अब सबसे पहले हमने क्या किया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज हमने ये समझा कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज अ पावरफुल स्टैटिस्टिकल टूल फॉर डिसीजन मेकिंग
डिसीजन मेकिंग के लिए ये एक किस्म का जो है ना पावरफुल स्टैटिस्टिकल टूल है, अच्छे से अच्छे डिसीजन लेने के लिए काम आता है। इट फॉलोज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, ये एक किस्म का स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है इन्वॉल्विंग हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। इन दिस यू वुड बी फार्मूला आप बना रहे होंगे, इसके फार्मुलेट कर रहे होंगे, यू वुड बी फार्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस, you would be applying the test statistics, and then you would be making the decision making would be involved. It's a very structured process, and you would be avoiding the common mistakes like misinterpreting the p values and using the small samples. जाहिर है आप अपनी गलतियां नहीं करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि जी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को चूज करें और ज्यादा से ज्यादा हो सके आपको फायदा हो। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस आपने पढ़ी, इट इंक्लूड द मेडिसिन में अप्लाई होती है, बिजनेस में अप्लाई होती है, एजुकेशन में अप्लाई होती है, इंजीनियरिंग में अप्लाई होती है, और जितने भी मेडिकल आपके पास चीजें, मेडिकल जितने भी इन्वायरमेंट होते हैं वहां पे आप ये अप्लाई कर रहे होते हो। ओके, प्रैक्टिस विद रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स टू इंप्रूव स्टैटिस्टिकल स्किल। यू वुड बी प्रैक्टिसिंग, हमने देखा किस तरह से ये जो है ना रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ जो है ना आपके पास आप यूज कर सकते हैं आप स्टैटिस्टिक्स को, और बायो स्टैटिस्टिक्स आपको वहां पे हेल्प आउट कर सकती है। तो ये था हमारा इस लेक्चर का जो है ना मेन, जो हमने इसका इंट्रोडक्शन किया और जिस तरह से हमने इन चीजों को कवर किया। तो यहीं पे हम जो है ना इसको एंड करेंगे, अगला लेक्चर हमारा इंशाल्लाह फिर होगा। यहाँ तक अगर क्वेश्चन है तो फिर पूछ ले। इंट्रोडक्शन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो। नो सर, आज कोई क्वेश्चन नहीं है सर। यस यस अम्मार, पूछ लें आप, सर क्वेश्चन पूछ लें। आज नहीं है सर कोई क्वेश्चन, मिडिल में क्लास ज्वाइन करी तो सर इतना कुछ समझ नहीं आया। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, आप आए भी देर से, आई थिंक इसकी वजह से जो है ना आपको इशू होगा। यस सर, यस। आपने मिड में ज्वाइन किया, यस। तो अगली क्लास में अगर ज्वाइन कर लीजिएगा इंशाल्लाह, जल्दी थोड़ा कोशिश कीजिएगा, अगर फिर भी अगर कोई इशू होता है तो इंशाल्लाह उसको हम कैटर कर लेंगे। मैंने फिर भी इसका रिकॉर्डिंग जो है ना वो मैं अपलोड कर दूंगा, और ओके उसकी सर। लिंक मैं आपसे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वो जो है ना दोबारा से लेक्चर जो है ना देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा लेक्चर मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। यस सर, यस सर। ठीक है, फिजिकल क्लास कब लेंगे सर? जी जी फिजिकल क्लास भी होगी, तो वो मैं आपको जो है ना उसके भी इंशाल्लाह देखता हूँ, टाइमिंग जो है ना मैं बताऊंगा। अच्छा, ओके और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। इकरा, आपको कोई क्वेश्चन है? इकरा, आर यू देयर? Yes, sir. कोई क्वेश्चन है आपको? No, sir, no question. ओके ओके फाइन, मैं बस ये लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा, तो आप इस लेक्चर को दोबारा से रिव्यू कर लीजिएगा। आज का हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन था, तो हमने उसको समझा। इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर होगा हमारे पास मेन, अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जो है ना पहले जो है हमारे पास मरहला है उसकी तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, और आई होप कि इंशाल्लाह वो जो है ना इम्प्रूव हो जाएगा। ओके जी, फिर हम यहीं ओके पे सर। इसको एंड अप करते हैं। ठीक है जी, ओके सर, थैंक यू। ओके ओके ओके, गुड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।